السلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود پاک الصلاۃ آج یہ خوبصورت محفل گھر والوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے نعمت کے حصول اور اس حصول کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ادائیگی شکر کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا، بار بار منانا، مختلف مقامات پر منانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جدھر بھی ہوتے ہیں ان کی رحمت آپ کے ساتھ، سبحان اللہ۔ جہاں جہاں وہ ہیں اور جہاں جہاں ان کا آپ کو فائدہ ہے وہاں وہاں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے بھی ہم لوگ بغیر طلب لالچ کے کوئی بات کرتے نہیں، اور ہمارا اپنی ذاتی طلب اور لالچ جس میں شریعت کے تقاضے بھی ہوں، روحانیت کے انوار بھی ہوں، رسول اللہ کے اذکار بھی ہوں، ان میں تو پیچھے ہٹنا انتہائی کمزور اور انتہائی سست فعل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ذات سے ہم کو سب کچھ ملا، ہر وقت ملا، ہر جگہ ملا، سبحان اللہ، اس کا ذکر بھی ہر جگہ اور ہر وقت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ جدھر بھی جاتے ہیں اسلام آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ بے شک، بے شک۔ ابھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، آپ کا اسلام بھی آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے اٹھ کر دوسرے گھر میں چلے جاؤ، تب بھی جدھر بھی گھومتے ہو، جہاں پر بھی ہوتے ہو، ہر وقت حالت ایمان میں مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی 2-4 منٹ کفر میں گزرے ہوں پھر وہ واپس اسلام میں آیا۔ وہ 24 گھنٹے اسلام میں ہے، 24 گھنٹے اس کو ایماندار ہونے کا اجر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر وقت آپ کو ایماندار ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو ہمارا ایمان، اسلام، یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ ان کی وجہ سے ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، شریعت ملی، طریقت ملی، انسانیت ملی، زندگی گزارنے کے لیے قوانین ملے، دنیا میں رہنے کے لیے حلال روزی کمانے کا طریقہ پتہ چلا، رشتے کیا ہیں، ناطے کیا ہیں، تعلقات کیا ہیں، منزلت کیا ہے، ادب کیا ہے، شعور کیا ہے، فکر کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں، چھوٹا کون ہوتا ہے، بڑا کون ہوتا ہے، اندھیرے کے احکام، روشنی کے احکام، عبادت کے طریقے، ریاضت کے طریقے، دنیا میں رہنے کے طریقے، آخرت میں جانے کے طریقے، یہ سب کچھ آپ کو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اور ہر وقت ان کا ذکر کرنا، ہر آن ان کی بات کرنا، یہ خاص لوگوں کا کام ہے۔ لیکن خاص طور پر ماہ ربیع الاول میں باقاعدہ لوگوں کو بلا کر، دعوت دے کر، نیت کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھا کر یہ کہنا کہ تم سب آؤ، ہم نے رسول اللہ کے بارے میں بات کرنی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس محفل کے انعقاد کا مقصد ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ذکر اس کا کیوں نہ کریں جو اس وقت ہمارے کام آئے گا جب کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اس میں سے ایک پورا باب ہے شفاعت کا،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे, गुजारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, अगर शफात का वजूद, शफात का मतलब क्या है? किसी के इंटरसेशन, ठीक है ना, किसी के लिए किसी से रिक्वेस्ट करना, ये शफात होती है। सुभान अल्लाह। मसलन इनका कोई काम है जो मुझसे हो सकता है, मैं नहीं कर रहा, आप कहें कि आप मेरे करीब हैं, तो आप कहें मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इनका काम कर दें, तो ये आपका गुजारिश करना ये शफात है। सुभान अल्लाह। ये क्या है? शफात। ये शफात है। इस शफात के वजूद, इस शफात के होने का मतलब ये है कि इंसान सिर्फ अपने अमाल पर बख्शा जाए, तो ये अकीदा गलत है। अगर सिर्फ अमाल पर बख्शिश होती, अपने पर्सनल एक्शंस पर उसकी फौज व फलाह कंसिस्ट करती, तो फिर शफात एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बेशक 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 सुभान अल्लाह। क्योंकि शफात तो इसलिए होती है कि आदमी ने कसूर किया हुआ, उसको माफ़ी चाहिए। बेशक, जिसके अमल पूरे हैं, नमाज पूरे हैं, हज पूरा है, ज़कात पूरी है, इबादत पूरी है, तस्बीहात पूरी, उसको शफात की ज़रूरत क्या है? शफात की ज़रूरत उसे है जो गुनाहगार है, जो फंसा हुआ है। बेशक बेशक बेशक। तो फंसे हुए को निकालना किसका काम है? अल्लाह का काम है। अल्लाह ने फंसे हुए को निकालना। इससे पता चला कि अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। और उससे ये भी पता है कि बंदों ने गुनाह भी करने हैं और बंदे ने खताएं भी करनी हैं, इसलिए उसने शफात को दरमियान में रखा कि अगर सिर्फ आमाल रखे तो ये आमाल में कमज़ोर हैं, दरमियान में शफात को भी रखा ताकि कोई बहाना बख्शिश का हो जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि सारी कायनात में, इसके तूल व अर्ज़ में, इसके ऊपर से लेकर नीचे तक अल्लाह ने जितनी भी मखलूक पैदा फरमाई, जिसको अल्लाह ने शफात के लिए पसंद किया, वो उसका महबूब। सुभान अल्लाह। हमेशा उसकी सिफारिश सुनी जाती है जो सबसे ज्यादा महबूब होता है। सुभान अल्लाह। बेशक। मसलन कभी आपने किसी से सिफारिश करानी है, तो क्या उसको लेके जाओगे जिसको वो मानता ही नहीं? वो तो जो थोड़ा बहुत काम बना होगा वो भी खराब होगा। बेशक बेशक बेशक। हमेशा आप सिफारिश के लिए उसको हाथ पकड़ेंगे, उसका दामन थामेंगे कि जो मालिक के बहुत ज्यादा करीब होगा, बहुत ज्यादा महबूब होगा और उसकी बात सुनी जाती होगी। उसकी बात, जिसकी बात सुनी ना जाए उसकी सिफारिश कहाँ होगी? मुझे आप बताएं कि अगर बात सुनी ही ना जाए उसकी सिफारिश कहाँ कबूल होगी? उसको सुना ही नहीं जाएगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश सुनी जाएगी या नहीं? रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं, हुजूर ने खुद फरमाया कि उस आखिरत के मंजर के लिए हुजूर ने फरमाया, अना सय्यदु वलद आदम यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह। कि मैं क़यामत वाले दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तमाम सुभान अल्लाह। वलद आदम, आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद है सबका सरदार मैं हूँ। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हु क़ब्रुहु, कि मैं वो पहला इंसान हूँगा जिससे उसकी कब्र को शक किया जाएगा। यानी कब्र जब, शक का मतलब क्या होता है? शक काफ दो नुक्ते से, मतलब शक का मतलब होता है दरार, उसको दो टुकड़े करना। तो शक्कुल कमर भी पता है, चांद दो टुकड़े होना। तो जब कब्र को शक किए जाएगा, ऐसे कब्र खुलेगी। ये शक्कुल कमर से ये भी पता चला कि कब्र जो है ये कैसे खुलेगी? ऐसे खुलेगी। जो शक है उसी वक्त होगा जब ये दो टुकड़े होगी। जब दो टुकड़े होगी तो फरमाया सारी कब्रें मौजूद होंगी,
कब्र की इब्तदा उसी से होगी जिससे तख्लीक की इब्तदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसको अल्लाह ने सबसे पहले बनाया है, कब्र भी सबसे पहले उसी की खोली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप की कब्र सबसे पहले खोली जाएगी। और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर फरमाया अना अव्वलु शाफ़िईन, और मैं सबसे पहला शफाअत करने वाला। सुभान अल्लाह। अव्वल इसलिए कहा कि बाद में भी लोगों की कब्रें खुलेंगी ना, लेकिन पहले किसकी खुलेगी? हुजूर की। इस तरह हुजूर ने फरमाया अना अव्वल शाफ़िईन, मैं पहले शफाअत करने वाला हूँगा। ये अव्वल क्यों कहा? इससे पता चला सिर्फ हुजूर शफाअत नहीं करेंगे, और भी हैं जो शफाअत करेंगे, लेकिन और उस वक्त करेंगे जब हुजूर शफाअत करेंगे। यानी दरे शफाअत खुलेगा हुजूर की वजह से, हुजूर शफाअत। और फरमाया व अव्वल मुशफ़्फ़ा, और सबसे पहले जिसकी शफाअत सुनी जाएगी वो भी मैं। सुभान अल्लाह। शाफे कहते हैं शफाअत करने वाले, शफी और शाफे दोनों का मतलब क्या होता है? शफाअत करने वाला, और मुशफ़्फ़ा उसे कहते हैं जिसकी शफाअत सुनी जाती है। सुभान अल्लाह। हुजूर शाफे भी हैं, मुशफ़्फ़ा भी हैं, आप सिफारिश करते भी हैं और आपकी सिफारिश सुनी भी जाती है। तो आप जब सिफारिश करेंगे वो कौन सा वक्त होगा? जब आपकी माँ आपसे दौड़ रही होगी, बाप आपका हाथ छोड़ के भाग गया होगा, बहन भाई आपको बहुत दूर भी नजर नहीं आएंगे, रिश्तेदार। आज कितने हम रिश्तेदारियों की वजह से हमारा एक फैमिली सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। कोई बहन भाई, बाप, माँ, चाचा, मामा, दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका फ्रेंड, कोई आपका ताल्लुक वाला, आपका नेबर, ये सारे के सारे आपको देख के दूर भागेंगे, कहीं नेकी का सवाल न कर लें। तो उस आलम में मैशर में शर्क से लेके गर्क तक कोई भी जब आपके करीब नहीं आ रहा होगा, तो उस वक्त सबसे ज्यादा महबूब वो है जो आपको अपने पास बुला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा काबिल कदर वो है जो उस वक्त आपके काम आ रहा होगा। और ये हदीसों से साबित है कि उस हशर के मैदान में जो आपके काम आएंगे वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसलिए उसका जिक्र करो जिसने आपको हर वक्त काम आना। सुभान अल्लाह। यहाँ दुनिया में काम आना का जो सिलसिला है जारी रहेगा, लेकिन ये महदूद है। हमें वहाँ जरूरत है जहाँ कोई काम नहीं आता है, अल्लाह भी मदद नहीं फरमाता, उसने भी दरमियान में अपने नबी की शफात को रखा है। कायनात मेरे नबी की कदर को समझे, माफ तो मैंने ही करना है, अल्लाह के सिवा कोई माफ नहीं कर सकता। याद रखो, माफ सिर्फ अल्लाह करेगा। लेकिन अल्लाह ने बताया जैसे तुम्हें सब कुछ किसी के जरिए दिया है, नमाज भी किसी के जरिए दी, ईमान भी किसी के जरिए दिया है, निजात भी किसी के जरिए दूंगा, और जिसके जरिए निजात दूंगा वही तो मोहम्मद है। समझो उनको कि वो कौन है। ये वो हैं जिनकी वजह से तुम्हें निजात मिल रही है। तो जिसकी वजह से निजात मिले, ईमान मिले, किताब मिले, शरीयत मिले, कब्र में सुकून मिले, हशर में हौज़े कौसर के जाम मिले, ऐसी शख्सियत का जिक्र अगर हर वक्त किया जाए तब भी कम। आप लोग जब अपने कबीले की बात करो, कौम की बात करो, अपने आबा अजदाद की बात करो, खुशी होती है ना। हमारे वाला साहब ने ये किया था, हमारे दादा साहब फलाने इलाके के गवर्नर थे, मुझे बता वो थे, आपको अभी क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आज आपको हम उस नबी के उम्मती हैं जो सारे नबियों का भी इमाम है, ये आपको फायदा दे। इसलिए कि आपके आबा अजदाद की गवर्नरी आपको फायदा नहीं दे सकती है। आपको रसूलुल्लाह की रिसालत और उनकी जो मकाम महबूबियत है वो आपको फायदा देगा। और हम यहाँ मिलकर उनकी विलादत का चर्चा करते हैं, मिलकर जितनी देर आप उनका जिक्र करते हैं ऐन इबादत में होते हैं, ऐन इबादत में होते हैं। तो वो जो आपको क़यामत के दिन काम आए, आप उनके जिक्र के लिए दलाइल मांगे, ये बहुत बड़ी बेवफाई है। और सुन्नी वफादार होता है, सुभान अल्लाह। सुन्नी बावफा होता है। सुन्नी के अंदर वफा
اس کے خمیر کے اندر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ جس مٹی سے اس کا جسم بنایا گیا ہے اس مٹی میں وفا کو ڈالا جائے اللہ تاکہ جو بھولنا چاہے بھول جائے لیکن اپنے نبی کو فراموش نہ کرے۔ سبحان اللہ